नमस्कार साथियों, जय श्री राम आप सभी को। मैं आप सभी का अपना एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और साथ ही साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब वीडियो पर। आज जो है वो मेरा 5th डे है कोटद्वार सेशन कोर्ट का। आज जो है 5th डे है, तो आज भी अमेजिंग थिंग्स जो हैं सीखने को मिलेंगी। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, कितनी सारी बातें मैंने आपसे करी, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आप सभी से शेयर करी। तो ये सारी चीज़ें जो है आज रहने वाली हैं। मैं उठ चुका था वही मॉर्निंग में, और उसके बाद जो है मैं चल दिया ब्रेकफास्ट वगैरह करके, फ्रेशन अप होके, बात लेके ऑफिस। उसके बाद then I back again in the home because of work। उसके बाद अब जो है मैं वापस से जाने वाला हूँ तैयार होके ऑफिस में। ऑफिस का करेंगे पहले थोड़ा बहुत काम, जो फाइल्स लगी हैं वो देखेंगे, और उसके बाद निकलेंगे ऑफिस से। कहाँ के लिए? कोर्ट के लिए, कोटद्वार सेशन कोर्ट के लिए। अगर आज भी जाना हुआ तहसील वगैरह, रेवेन्यू कोर्ट वगैरह, तो वो भी जो है मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को व्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। एक आम जिंदगी जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से एक आम जिंदगी होती है एडवोकेट्स की, दोज हू प्रैक्टिस इन सेशन कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बाखूबी तौर से जो है वो दिखा रहा हूँ, जितना मेरे से बन पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आजकल मतलब आदत थी नहीं, तो आजकल कोर्ट में लगातार खड़े होना पड़ता है, सुबह 10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक। तो इस कारणवश जो है पैरों में भी थोड़ा दर्द चल रहा है, बट कोई नहीं। दिस इज़ द लाइफ एंड दिस इज़ द एज in which I have to do hard work, so that if I'll burn myself right now, so I can become a gold in future. But if not, then vice versa, I can't do anything. So these many things, and you all know that hard work is key to success, and I'm doing that hard work which my father is doing from last 25 years, from good 25 years. And now I have also started doing that hard work, so that I can also become a 1% of my dad, because he's a gem of a person. He's a gem. So ये सारी चीज़ें हैं। ब्रेकफास्ट हैव डन, और ब्रेकफास्ट आज मैंने जो है करा, वो मैंने करा पराठे का और कढ़ी का। मेरी मम्मी कढ़ी बनाती बनती, ये सब करा। अभी देखते हैं, शेप बनवा लूँगा। अगर अभी मैं गया तो था सैलून पर दैट टाइम द बार्बर वाज बिजी। ही टोल्ड मी टू कम एट 9, बट नाउ इट इज़ 9:20, so I'll go if he'll free, so I'll go to him. If not, then I'll see later on. So these are the things which are going in my life. I told you my daily routine that which I'm following. Wake up in the morning, then working till night, and this is a life, and this is an actual life of our litigants, those who work in a district court, those who work in a session court, or those who work in a trial court. They know each and all the things, each and everything, and all the circumstances and all the problems which the district courts, advocates and litigants to face in the life. When I'll go towards other courts, or whenever I'll shift towards new city, then also I'll tell you about the things. I'll tell you about the elaborate things of that, that courts, of that city, different vibes. I'll catch that vibes also.
So these are the things, and now I have to groom up myself and have to left for the office. Then I'll leave for coach with my dad, and I hope so that you all are liking my vlogs. And if you're liking, so please like, share, comment. And if you are new to my channel and if you are watching my YouTube videos with interest but without subscribe my channel, so it's my humble request to you all that please kindly, subscribe to my channel so that your brother Advocate Ujjwal rise, and if I'll rise, so you will also rise. So these are my requests to you all, to my brothers. So what can I say, yaar? What can I say? These all are the things. And in last vlog, you listen that I told you about that, talking with my dad about PhD and all, about professor life and all. So these are the things are. I'll carry on my goals. I'll work hard for my goals. आप सभी ने देखा अभी that I ran towards that side because गैस पे कुछ रखा था, गिर जाता तो मम्मी डांटती, इसलिए I tried my best that these things should not happen, so that I so that she can't scold me. And I hope so you all are doing in your life good, well. And now I dress up myself, groom up myself, and I'll catch you in another clip. So wait and watch my vlog till last. Like, share, comment, and subscribe to your brother's channel, Law and Life with Advocate Ujjwal. मीटिंग हो चुकी है, मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस, कोर्ट वगैरह गया, काम वगैरह करा, काफ़ी ज़्यादा काम जो था वो लगा हुआ था। तो कुछ ऐसा जो है आज का स्केड्यूल रहा हमारा, आज के डे का, आज के दिन का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से रहा और काफ़ी ज़्यादा सही रहा, काफ़ी ज़्यादा सही रही चीज़ें। और सीखने को तो देखिए डेली बेसिस पे जो है वो मिलता ही है, तो आज भी जो है वो डेली बेसिस पे सीखने को मिला। और पापा इज़ माय गाइड, पापा से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो है मैं आपको बताऊं, मैंने 2 एडजॉर्नमेंट की जो है वो एप्लीकेशंस भी बनाई थी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हिंदी चलती है, इंडिया के सभी लोअर कोर्ट्स में तो हिंदी चलती है, उनकी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज चलती है। तो जो है 2 एडजॉर्नमेंट वगैरह बनाई थी। तो बेसिकली मैंने जो बनाई थी वो तो मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर करी थी, बिकॉज हिंदी में कहीं ना कहीं वर्ड्स में जो है ना दिक्कत होती है लिखने में, क्योंकि एक तो हिंदी की आदत छूट चुकी है लिखने की, दूसरा जो लीगल लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं हिंदी के, दे आर वेरी टफ फॉर मी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं क्या बताऊँ, शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे कि कल कोर्ट्स तो मैं सारी अटेंड करता हूँ। अब जो है नया एक एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा मंडे से। वो क्या एक्सपीरियंस होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज कैंप जो है वो कोटद्वार सेशन कोर्ट में हर मंथ में जो है, इन ईच एंड एवरी मंथ फॉर 1 वीक इट कम्स फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो आते हैं 1 वीक के लिए, हर महीने 1 वीक के लिए वो आते हैं। और 1 वीक जो है डिस्ट्रिक्ट जज कैंप रहता है, फ्रॉम मंडे इट इज़। और अब जब मंडे से कैंप है तो काफ़ी सारी चीज़ें तब सीखने को मिलेंगी, क्योंकि डीजे कैंप है, उसको डीजे कैंप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कैंप। देखते हैं बाकी
क्या होता है, अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा और सही लग रहा है काफ़ी लोअर कोर्ट में, क्योंकि पापा ने मेरे जिस तरीके से कहा था कि यार पहले लोअर कोर्ट से थोड़ा सा काम सीखो, चाहे वो मिसलेनियस वर्क हो या कोई एनी अदर वर्क हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है यार। अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ इन लिटिगेशन, तो आपको कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट का काम जो है वो आना चाहिए, पता होनी चाहिए चीज़ें, चाहे प्रॉपर काम, मतलब अगर आपने बाहर काम करना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो आपको लोअर कोर्ट का काम एक तरीके से पता होना चाहिए हाँ ये चीज़ें होती क्या हैं एग्जैक्टली। क्योंकि ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, फाइल बिल्कुल बंधी भी जाती है, बिल्कुल कंप्लीटेड फाइल जाती है, जैसे ऐसे अपील वगैरह होती है लोअर कोर्ट से वो जाती है, तो उसमें क्या होता है पूरा केस जो है, जो एडवोकेट जिस एडवोकेट को वहाँ पे हायर करते हैं वो जाते हैं वहाँ पे लेके फाइल, और वो जो है उनको ब्रीफ करते हैं कि हमारा ये हुआ है और इस तरीके से हम इस चीज़ में अपील करना चाहते हैं, या इस चीज़ में जो है हम फाइल करना चाहते हैं इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से जो है उनको क्या होता है, उनको ब्रीफ मिलता है केस का, पूरी एक समरी मिलती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन एडवोकेट्स को, और वो डायरेक्टली फिर उस चीज़ के ऊपर जो है काम करते हैं, वहाँ ये होता है। लेकिन लोअर कोर्ट में क्या होता है, लोअर कोर्ट में ट्रायल चलता है, और जब ट्रायल चलता है, जैसे कल मैंने देखा, मैंने एविडेंस देखे, एविडेंस कैसे होते हैं, एविडेंस क्लोज होते हैं, जैसे सिविल केसेस में एविडेंस क्लोज का भी होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन जो क्रॉस होता है, चीफ होता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। क्रिमिनल केसेस में जैसे पुलिस आती है, तो जो आईओ वगैरह होते हैं जो वहाँ पर उस समय, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हुई है तो वो वहाँ गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, तो वो उस जगह जाते हैं, जैसे पुलिस को लोग बुलाते हैं, तो वो वहाँ पर जो है पुलिस जब जाती है तो उसको कहते हैं कि मतलब कोर्ट में फिर जब वो चीज़ आती है इस केस से रिगार्डिंग, तो पुलिस को बुलाया जाता है, कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है कि भाई आप आइए, बताइए कि ये जो डिटेल्स हैं इस क्रिमिनल केस की, क्या वो सही हैं गलत है। तो फिर उनसे क्रॉस होता है, तो सारा का सारा कंप्यूटर में जो है बेस्ड होता है, उसमें लिखना पड़ता है। तो उसमें एडवोकेट्स जो होते हैं, जैसे डिफेंडेंट के एडवोकेट्स जो हैं वो पुलिस से क्रॉस करते हैं कि क्या ऐसा हुआ था, आपने जीडी में ऐसा लिखा है, जर्नल डायरी में ऐसा लिखा है, तो क्या ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सारी चीज़ें हैं। फाइल पढ़ोगे तो चीज़ें जो है समझ आएंगी भाई। इतना ये तो मैंने सीख लिया, मतलब इफ़ यू वांट टू डू अ लिटिगेशन, बस यू नीड टू you want to see your file, you want to watch a file, you want to study, you have to study your file properly, so that you can go and do the things easily. Otherwise, if you do not if you do not read your file, you do not read your case properly, so it will be difficult for you only, because then you can't ask questions from other person, or you can't make your case strong, और आपको जो है इसके बारे में भी जो है पता होना चाहिए, कौन सी क्या बोलते हैं, कौन से कागज़ लग रहे हैं, कौन से कागज़ नहीं लग रहे हैं, कौन से कागज़ लगने ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी। मैं अभी आपको कुछ जो है ना मेरे वर्ड्स हैं, कल मैंने हिंदी वाले लिखे हुए हैं, वो भी जो है मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कल पढ़ा शपथ पत्र, विच इज़ नोन फॉर एफिडेविट, एंड फिर आता है साक्ष्य शपथ पत्र, यानी कि एविडेंस। प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, एनआई एक्ट 138 को हिंदी में कहा जाता है नहीं परक्राम्य परक्राम्य अधिनियम। एनडीपीएस को कहा जाता है स्वापक औषधि मन प्रवाह। देखिए, तो हिंदी ज़्यादा कठिन है, इंग्लिश
से ज़्यादा हिंदी कठिन होती है। आप समझ सकते हैं लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस में जो है कितना जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना एम्फेसिस जो है उसमें लगाना पड़ता है। एनडीपीएस का मैंने अभी आपको जस्ट बताया। स्वापक, औषधि, मन प्रवाह, गुंडा, ये नहीं सॉरी, गुणदोष, गुणदोष को कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट्स। कायदा 16, एक होता है कायदा 16, वो बेसिकली सिविल केसेस में लगता है। साइड में जैसे ये पेपर है तो इस वाली साइड में ऐसे छोटा सा बॉक्स बनता है, सिविल केसेस में लगता है साइड में, राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर में। ठीक है, ग्रीन कलर। और मैंने कल एक चीज़ और पता करी, ग्रीन कलर का जो बड़ा पेपर होता है वो जजमेंट पेपर होता है, जो कि अभी तक तो मैंने फ़िलहाल खैर लोअर कोर्ट्स में वो देखा है कि वो चलता है। एडजॉर्नमेंट को कहा जाता है नेक्स्ट डेट, जो है नेक्स्ट डेट जब आपको उसमें लेनी हो, उस केस में जब कोई वैलिड रीज़न हो कि या तो आप तैयारी ना कर पाए हो, आपकी फ़ाइल पे कोई आर्ग्यूमेंट हो, आप उस पर तैयारी ना कर पाए हो, या कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्राउंड कि आप जिस पे नेक्स्ट डेट ले सकें, जो फाइल थी वो आज किसी स्टेप के लिए लगी हुई थी, किसी स्टेज के लिए लगी हुई थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू सम ग्राउंड्स यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग इन अ कोर्ट। जैसे मैंने अभी आर्ग्यूमेंट का बताया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं जो है आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है नोट करी हुई हैं मेरे द्वारा, ताकि मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर कर सकूँ ऑन द डेली बेसिस ऑफ माई लाइफ। और ये सारी चीज़ें हैं। और तो मैं क्या कहूँ, आज जाना है कोर्ट, अभी मैं ऑफिस में हूँ मॉर्निंग में, अब जाऊँगा घर, देन आई गेट रेडी फॉर द कोर्ट। तब उसके बाद जो है करते हैं, देखते हैं कुछ आगे का सिस्टम, तब निकलेंगे कोर्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी तो मैं आपको क्या बताऊं, तो ये सारी चीज़ें हैं यार। जब ट्रायल कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, लोअर कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, सेशन कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, तो एक चीज़ तो है, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। पर जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो होता है ना, प्रॉपर हार्ड वर्क, भाई वो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है। क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में भी जो है वो इंटर्न वगैरह करी हुई है, दिल्ली में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो वो वहाँ क्या होता है, आपको केसेस का पता रहता है, आपका केस आफ्टर लंच लगेगा, बिफोर लंच लगेगा, कितने टाइम पीरियड में आपका केस जो है वो आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। और जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं, आप लोअर कोर्ट से आपको कोई कुछ जजमेंट पसंद नहीं आया, यू गो फॉर अपील हाई कोर्ट। उसके बाद आपकी जो है अपील फाइल होगी वहाँ पर, फिर आपकी जो है आर्ग्यूमेंट वगैरह लगेंगे डायरेक्ट, कि आप किस बात पे जो है अपील करी है आपने, क्या आपका ग्राउंड है इसको अपील करने का, और क्या आर्ग्यूमेंट्स आपके रहने वाले वो होते हैं। उसके बाद कुछ डेट्स लगती हैं और फिर जजमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोअर कोर्ट से अलग हैं बहुत ज़्यादा। लोअर कोर्ट तो यार प्रॉपर ट्रायल कोर्ट है, प्रॉपर ट्रायल चलते हैं वहाँ पर, प्रॉपर ट्रायल। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ आपको ऐसे पता नहीं होता कि आपका कैसे लंच के बाद आएगा, बिफोर लंच आएगा, जितनी जल्दी जल्दी फाइल्स होती रहेंगी आपका केस आता रहेगा। आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, ध्यान में रहना है कि आपकी कब फाइल आने वाली है, कब नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं होगा तो यू कांट डू एनीथिंग। नॉर
No, I'm not talking about only just for litigation. I'm talking about each and every सारी चीज़ें हैं। आज तो इतना सारा मतलब मैंने तो यही सब चीज़ें जो है सीखी। देखते हैं मंडे से जो है वो डीजे कैंप रहेगा, तब देखते हैं डीजे कैंप में क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो बेहद अच्छे होंगे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप लोग चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल which is very important for me as well as for you, so that you can also see my video within a second when the notification pop up on your screen। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कौन अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।